Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. This is Abdul Ghaffar सर ये भी Abbasi पढ़ here. लिया था, ये पढ़ लिया था, ये भी ये पढ़ कर लिया। लिया? Okay. This topic, atomic hydrogen, we have completed atomic hydrogen torch, right? जी, And then यहाँ today we will discuss nascent hydrogen. Nascent hydrogen basically and atomic hydrogen is same. There is no difference. But थोड़ी सी representation कैसे लिखोगे? Hydrogen gas liberated during the chemical reaction is always that will be atomic hydrogen, that will be in atomic state, and that is also called as the nascent hydrogen. सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का डिफरेंस क्या है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, लार्ज ब्रैकेट्स में. दिस इज कॉल्ड द nascent hydrogen. Acha, when the nascent hydrogen, as I told you right now, that it is same like atomic hydrogen. So look at this main point, that if the substance is capable to react, is present, then it will react. अगर कोई भी दूसरा एलिमेंट वगैरह है तो इससे रिएक्ट करेगी ये वाली nascent hydrogen. Otherwise, it will recombine and then it will form molecular hydrogen like in this way. As you know that atomic hydrogen is very reactive, तो दोबारा वो molecular hydrogen में convert हो जाएगा. Okay. Now this is the diagram related to the nascent hydrogen or atomic hydrogen. Okay, this is very important topic, that industrial preparation of the hydrogen, molecular hydrogen. ये बहुत बार पास पेपर में क्वेश्चन आया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है. हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट वेज, राइट? दीज आर द थ्री वेज. नंबर वन, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, by cracking of methane, by thermal decomposition of ammonia. These are three important ways through which hydrogen gas can be industrially prepared, right? So directly we are starting discussing the first method, that is the uh, preparation of the hydrogen gas through electrolysis of water. Okay, what you will write when we discuss the electrolysis of water? Water is, as you know, that weak electrolyte. When a strong electrolyte like acid, base or salt is added to water, right, then what will happen? It will start to conduct electricity, right? When electric current is passed, water dissociates into positive and negative ions, right? वाटर में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कौन से होते हैं ये देखें. आयंस इन वाटर H2O, इसके दो होते हैं आयंस. इसको अगर डिकम्पोज करें, एक होता है H पॉजिटिव आयन और दूसरा होता है हमारा OH नेगेटिव आयन. इसमें डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है. और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोलिसिस जो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया था, तो इसमें देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है. हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट कैथोड and oxygen is collected at anode. Cathode is negatively charged electrode and anode is positively charged electrode. ये मैं डायग्राम में भी दिखा रहा हूँ. और दिस इज द इक्वेशन कि वाटर को अगर इलेक्ट्रोलिसिस करें तो एक पे हाइड्रोजन गैस आती है एनोड पर, सॉरी इस पे कैथोड पे, और एनोड पे ऑक्सीजन गैस आती है. किस तरह से, अब ये देखें. दिस इज द डायग्राम. व्हेन यू एड वाटर हियर, right, as you are seeing right now, so you have to add any acid or base or salt for better conductivity, right? So water, you will add here water, then this is cathode negatively charged, this is anode positively charged, this is plate, electrode, we can say that metallic plate, and that is connected with voltage or battery, right? जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो फिर ये है, ये जो हमारा वाटर है ये आयोनाइज हो जाएगा, दो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक OH दूसरा H. तो ये नेगेटिव है, तो हाइड्रोजन जो है ये देखें, अगर H2O, तो हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव आयन ये इधर मूव करेगा, कहाँ, नेगेटिव वाली साइड पर. और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, अगर आपको पता है एटॉमिक हाइड्रोजन है, तो ये रिकम्बाइन होके मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बनेगा. और ये जो OH है
ये वाला दूसरा पार्ट जो इसका बचेगा OH वाला, OH विल मूव हियर, और OH जो है ये प्रोड्यूस, याद रख लें कि OH डिकम्पोज होके फिर OH प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द water, and through the electrolysis of water there are two gases produced. One is hydrogen gas, which is collected at cathode, and second one is the oxygen gas, which is collected at the anode. And when we perform the electrolysis of water, there are two ions. Water will be dissociated into two ions. One is hydrogen positive, this is the first. Second one will be hydroxide, OH negative. So OH negative will produce the oxygen gas, and hydrogen positive will recombine to form hydrogen gas, right? This is the electrolysis of water. If you people have any difficulty in these two slides, you can ask. Yes, girls. No, sir. Okay, Alize. Yes, Faryal. sir. समझ Faryal. Faryal, is it okay, बच्चे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं पूछ रहा हूँ बच्चे कि ये जो मैंने समझाया ये समझ में आया आपको? जी सर, ये समझ आया। समझ में आ गया दोनों स्लाइड्स? जी। ओके गुड। अच्छा, अब मुझे ये बता दें, आप लोगों को मैंने थोड़ा सा पहले भी कॉपीज से रिलेटेड कुछ बोला था, तो आपने कॉपीज का क्या किया है, कहाँ तक कंप्लीट किए हैं? अलीजे पहले आप बताएं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सर बन रही है मेरी बन रही है, अभी बीच में है कॉपी, तो कंप्लीट हो ठीक, जाए फिर। ओके गुड है, गुड है। मतलब आप अभी से ही काम करना शुरू कर दें, क्योंकि देखें इस वीक में आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम लोगों का सेकेंड चैप्टर भी एंड हो जाए। तो अगर सेकेंड चैप्टर, वरना तो नेक्स्ट वीक में तो स्टार्टिंग में हो जाएगा। तो देखें 2 चैप्टर्स हो जाएंगे, और आपको पता है इस चैप्टर की 78 स्लाइड्स हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर की भी 50 तक हैं। तो मेन मेन पॉइंट्स आप लोग स्लो स्लो लिखोगे तो कंप्लीट होगा, वरना इससे किस तरह से कंप्लीट होगा। ओके फरियाल, आप बताएं कहाँ तक कंप्लीट किया है? हो रही है कंप्लीट, अभी कंप्लीट नहीं हुई। ओके, आज आप लोगों ने दोनों ने क्या करना है कि मुझे जितना भी काम किया है, जो अगर आप पर्सनली मुझे जो नंबर है उस पर भेजें जब भी ठीक है, अगर आप अपने ग्रुप में जो भेजें 12MC में जब भी ठीक है, जो आप लोगों को इजी लगे, इसके स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने सेंड करना है, जो भी काम किया है केमिस्ट्री का। इज इट ओके? यस सर। Okay, industrial preparation of hydrogen. First method we have completed, that is the electrolysis of water, right? This is the diagram as I told you, as I have discussed this, you can say the diagram also. Now, what are some advantages and disadvantages of this, you can say that process? There is only one advantage and one disadvantage. Hydrogen gas, which is obtained by the electrolysis of water, it is 100% pure, and hydrogen gas which is produced through the electrolysis of water, so it's basically very expensive method due to electricity cost. It's very expensive. So these are the two advantages, and there are lots of other, but I have mentioned only these two. Book सर में सर आप एक एक आपसे एक बात डिस्कस करनी थी। हाँ हाँ जी 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 बोले। सर मैंने इसे प्रॉपर कॉपी नहीं बनाई, नोट्स की फॉर्म में बनाई है। हाँ कोई इशू नहीं, लेकिन कॉपी जो है ना बच्चे, जो जर्नल हो वो नया हो, उसको आप हाँ उसको मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में अच्छा लगे, भले आप नोट्स ही बनाएं, वही तो जरूरी। नहीं हाँ सर, वही तो जी, नहीं ऑर्गेनाइज फॉर्म में, मेरे नोट्स कभी ऑर्गेनाइज नहीं होते। मतलब हर चीज लिखी होती है पर प्रॉपर वे में नहीं। नहीं मतलब इतना तो है ना, तो टीचर पढ़ तो सकता है ना, ऐसे तो हाँ है। ये है, ये सर ये है, बस आप पढ़ नहीं, सकते हैं। अली से मेरा मतलब बच्चे ये है कि ऐसे ना हो कि एक कॉपी हो जिसमें समझें 2 पेजेस केमिस्ट्री के हों, 2 बायो के हों, 2 उसके हों, नहीं ऐसे ना हो। हाँ, नहीं नहीं, एक अलग से केमिस्ट्री कॉपी है। अलग से केमिस्ट्री की कॉपी है, नई होनी चाहिए, और उसको थोड़ा सा ऐसे हो कि टीचर थोड़ा रीड आउट करे कि पता चल जाए कि भाई आपने, पता है वैसे और कोई इशू नहीं। द रीजन इज दैट
कि आप लोग लिखेंगे तो टीचर को भी थोड़ा आइडिया होगा कि आप लोगों ने काम किया है। और दूसरा ये है, जैसे आप लोग नोट डाउन करोगे तो आप लोगों के लिए भी इजी होगा बच्चे, कि आप लोग भी याद कर सकते हो, और कोई भी टेस्ट वगैरह हो तो आप लोग आराम से उसको देख के कर सकते हो। कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगी ना जो हम लोग ये पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, दिस इज द रीजन। ओके, उस पर थोड़ा सा डेट वाइज काम लिख दें कि ऐसे डेट, जैसे रिकॉर्डिंग्स हैं क्लास की, तो कौन सी डे पे कौन सा टॉपिक पढ़ा है, दिस इज द थिंग, ये लिखना है इस तरह से आप। ओके, सर थैंक यू। फेयर करके फिर भेजना। हाँ, और सिलेबस वगैरह भी आप लोगों को पता है, ये सिलेबस भी आप लोग सारे चैप्टर से लिख दें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के, हम लोग स्लो स्लो हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके जी सर। Okay. Now, the second method, that is the by the cracking of methane. मीथेन की क्रैकिंग जब आप करोगे, जब भी आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, when natural gas, which is that is methane, is heated in the absence of the air, and the temperature what you have to provide, that is 700 degree Celsius temperature, it decomposes to produce hydrogen gas, right? Like, look at here, this is the methane, that is the natural gas. जब आप इसको हीट करोगे, टेम्परेचर कितना देना है, 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे आप लोग। then what will happen, you will get two main product, one which is our requirement, that is the hydrogen gas, and second is byproduct, that is carbon solid, right? So I have mentioned here that we are having another byproduct, क्योंकि बाय प्रोडक्ट उसको कहते हैं जो आपको मतलब एक मेन प्रोडक्ट चाहिए, उसके साथ एक और भी प्रोडक्ट अगर एक्स्ट्रा मिले तो। सो ड्यूरिंग दिस क्रैकिंग ऑफ मीथेन, कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन्ड बाय द एज अ बाय प्रोडक्ट, राइट? ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द यूजेस ऑफ द कार्बन ब्लैक, के चलें जी, कार्बन ब्लैक के क्या क्या यूजेस हैं। इन इट इज यूज्ड इन टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंक में यूज होता है, इट इज ऑल्सो यूज इन द प्लास्टिक, it is also used in pens, different you can say that pens, like it has a black color, so we will use this one, and typewriter ribbons उसमें भी यूज होता है, और कार्बन पेपर्स में होता है, प्रिंटर जो यूज होते हैं प्रिंटिंग इंक में भी यही यूज होता है। तो दीज आर दी 6 डिफरेंट यूजेस ऑफ दी कार्बन ब्लैक। अच्छा अलीजे, एक और बात बचे कि फर्स्ट ईयर में तो टीचर पढ़ाता है कि भाई चलें इस तरह से ये है ये, लेकिन इंटर में पढ़ाने का थोड़ा सा, अगर आप पूछेंगे आप अरीज से भी, तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है वो, इस तरह से कि उसमें टीचर जो है कोशिश करके जो है सब्जेक्टिव भी, लेकिन कोशिश करके ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस करता है, क्योंकि आपका एंट्री टेस्ट का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। तो एंट्री टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस वगैरह, उसमें की पॉइंट्स कौन से हैं, किस तरह से याद करने हैं आप लोगों को, तो वो भी हम लोगों को डिस्कस करना है। तो ये जैसे यूजेस हो गए, या जैसे उस दिन मैंने फॉस्फीन बताया था कि PH3 यूज होता है, ये भी एंट्री टेस्ट के पास पेपर्स में आया था। तो इस तरह से आप लोगों ने थोड़ा सा नोट डाउन करना है। ओके यस। ओके, सो इन दो स्लाइड्स में अगर आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी है तो आप लोग पूछ सकते हो। बाय द क्रैकिंग ऑफ मीथेन एंड बाय द यूजेस ऑफ कार्बन, फरियाल एंड अलीजी। नो सर। नो फरियाल, व्हाट अबाउट यू? नो सर। ओके ओके, ये कोशिश करके बच्चे थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन भी करते जाएं, कॉपी पे लिखा हुआ हो, कुछ ना कुछ सुने भी, कुछ ना कुछ नोट करें, और कुछ ना कुछ देन एंड देयर टीचर को बोलें कि सर ये जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये हमें नोट डाउन करने दें, कुछ ना कुछ एटलीस्ट नोट डाउन भी कर लिया करें। इतना मैं मतलब सर पढ़ाता। मैं नोट डाउन करती जा रही हूँ हाँ, अभी। गुड है, दैट्स गुड। ओके, उसमें क्या है ना कि आप लोगों को टीचर की बात सुनेंगे भी, थोड़ा सा आप लिखेंगे भी, नोट डाउन भी करेंगे, तो वो याद होता है। Okay, now we are moving towards the last, we can say that method, that is by the thermal decomposition of ammonia. Ammonia NH3, अमोनिया की थर्मल डिकम्पोजिशन अगर आप करें तो जब भी आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा, this is the description: when liquid ammonia
और अमोनिया गैस आप कह सकते हो, लेकिन लिक्विड लिखना है तो यहाँ पे लिक्विड करना है। लिक्विड अमोनिया इज वेपोराइज्ड एंड हीटेड अप टू 1000 तक आप इसको अगर हीट करोगे, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट भी कोई दे के, इट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस अ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। कैटलिस्ट हमारे आपको पता है ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, तो वो आप लोग यूज़ करोगे। तो उसके बाद क्या है कि दो प्रोडक्ट्स मिलेंगी, एक नाइट्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड एंड देन हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। तो हाइड्रोजन हमारा जो है, दिस इज अवर रिक्वायरमेंट, ओके। एंड देन नाउ लुक एट हियर, you have obtained two gases, one is nitrogen and second one is hydrogen. Now the main problem is that how you would separate nitrogen gas. Separation of nitrogen किस तरह से करनी है बच्चे, देखें। Mixture of nitrogen and hydrogen is cooled, जब आप उसको cool down करोगे at -196, nitrogen liquefies and hydrogen gas will be separated in a gaseous state. नाइट्रोजन आपका 196 पे अलग हो जाएगा और आपके पास हाइड्रोजन जो है गैसेस फॉर्म में आपको मिलेगा। सो दिस इज द वे हाउ टू सेपरेट द नाइट्रोजन फ्रॉम द हाइड्रोजन बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द ammonia. Okay, steam and alcohol method, right? This is the alcohol organic compound, this is called methanol. And what is another? Steam means, look at here, water in the gaseous form is called steam. Okay, when methyl alcohol or methanol is passed over the steam, this is the steam, at 250 degrees Celsius temperature, 250 टेम्परेचर आपने देना है, ठीक है। A mixture of hydrogen and CO2 is obtained. Mixture of CO2 and hydrogen is obtained. दो आपको चीजें मिलेंगी, वन विल बी हाइड्रोजन गैस जो आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, दूसरा है हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमारे पास इश्यू है कि हाउ वी हैव टू सेपरेट दी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को आपने सेपरेट करना है। सर ये ओके मैं बताऊं जी, अलीजे क्या कह रही हैं? सेपरेट कैसे करेंगे, ये मैं बताऊं। हाँ, यस, सर इसमें सेपरेट ऐसे करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, हाइड्रोजन इज insoluble in water and carbon dioxide is soluble in water. तो under high pressure मतलब 25 to 30 atm पर हम हाँ, इसे dissolve like but pressure dissolve करने की कोशिश करेंगे, फिर ये अल्कोहल बनाएगा, कार्बोनिक एसिड वाटर एग्जैक्टली से। मी, वेरी गुड वेरी गुड। CO2 डिजोल्व हो जाएगी उसमें और हमारे पास सिंपली जो है हाइड्रोजन गैस बचेगी जो हमारी रिक्वायरमेंट है। वेरी गुड। नाउ लुक एट दिस वन, बिल्कुल ठीक आपने बताया। सेपरेशन ऑफ द CO2, हाउ वुड यू सेपरेट? व्हेन you when the mixture of hydrogen and CO2 is introduced into water, right, at high pressure, CO2 is right now you told that one is soluble and one is insoluble, so it will be dissolved in water and hydrogen gas will be separated. हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, CO2 गैस उसमें डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो दिस वाज द सेपरेशन ऑफ CO2। अच्छा, उसके बाद देखें एक और है कि एक और मेथड के थ्रू भी आप हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोक एंड स्टीम प्रोसेस। कोक मीन्स कार्बन विच इज सॉलिड इन स्टेट एंड स्टीम मीन्स वाटर गैसेज स्टेट। तो जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो अलीजे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक नोट डाउन लाजमी करना है। पास्ट पेपर्स में एंट्री टेस्ट के क्वेश्चन आया था, इवन आपके जो बोर्ड का पेपर है उसमें भी क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है? तो वाटर गैस इज नथिंग बट इट इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चे बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड बोल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, इन दोनों की मिक्सचर को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर गैस। तो इसमें देखें, when steam is passed over red hot coke, mixture of carbon monoxide and hydrogen which is known as water gas is obtained, जो हमें मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने दोबारा से लिख दिया है यहाँ पे, ये क्योंकि आगे एक CO2 प्रोड्यूस होगा तो आपने वहाँ पे प्लेस करना है। तो दिस इज द सेम लाइक वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ वुड यू सेपरेट CO2। तो ये हमें
एक आगे स्लाइड आएगी उसमें पेस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में ही स्टीम एंड नेचुरल गैस मेथड। स्टीम और नेचुरल गैस ये देखें मीथेन, और स्टीम ये है। इसमें भी अगर आप देखो तो आपको CO एंड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो ये भी वाटर गैस मिल रही है आप इसको इसमें और उसमें भी। अब आप कहेंगे कि सर इन दिस वाटर गैस वी रिक्वायर ओनली द हाइड्रोजन, राइट, एंड वी डू नॉट रिक्वायर द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब क्या होगा कि वी हैव टू सेपरेट कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपने देखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे सेपरेट करोगे। नाउ लुक एट हियर, हाउ वुड यू सेपरेट कार्बन मोनोऑक्साइड? by these two methods. Number one is water gas is cooled at -200 and at -200 CO liquefies. जब वो लिक्विफाई हो जाएगी तो हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जाएगी, नंबर वन। दूसरा, अभी भी जब आपने अलीजे मेथड नंबर 1 अप्लाई किया है तो उसमें हो सकता है देयर माइट बी सम ट्रेसेस ऑफ CO, सो हाइड्रोजन so obtained contains few particles of carbon monoxide, राइट, उसमें हो सकता है कि कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस हों। तो इन ऑर्डर टू रिमूव इट कंप्लीटली, हाइड्रोजन गैस इज रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास सोडियम फॉर्मेट मिलता है। तो अब आपके पास जो हाइड्रोजन गैस होगी दैट विल बी कंप्लीटली प्योर, बिकॉज देयर आर नो एनी traces remaining in the hydrogen gas, traces of CO remaining in the hydrogen gases. Now we are moving towards the method number 2. Method number 2 देखें, water gas is heated with steam in the presence of iron oxide or cobalt oxide. These are catalyst. अब इसमें reactant कौन से हैं? Water gas is heated with steam. This is the water gas is heated with the steam, right? So what will be produced due to this reaction? CO is converted into CO2. इसमें फिर हमारा जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 में कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोजन में। अब ये अलीजे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये वाला सेपरेशन ऑफ CO2 वाला, दोबारा से आप यहाँ पे पेस्ट करोगे कि भाई हाउ वुड वी सेपरेट द CO2। एज यू नो इट इज डिस्कस्ड अर्लियर that CO2 is dissolved in water, so you have to react it this with water under high pressure. CO2 will be dissolved and hydrogen gas will be separated. So we have discussed right now these 3 slides. इन 3 स्लाइड्स में कोई भी डिफिकल्टी है तो आप लोग सवाल पूछें, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। दैट इज बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। इसको थोड़ा सा देखें, इसमें कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछें, आराम से, जल्दी नहीं करें, जो डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। सर मुझे क्लियर हो गया। क्लियर है, गुड। एंड व्हाट अबाउट यू परियाल? चलें, गुड। तो ये बाय दी, ये थोड़ा सा लेंदी है, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। बाकी अगर पहले 2 देखें तो दे आर वेरी इजी, लाइक बाय द क्रैकिंग ऑफ मीथेन, एक स्लाइड में ही है, और बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वी कैन से दैट वाटर, ये भी अगर आप देखें तो ये भी एक ही स्लाइड का है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेंदी है। बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की थर्मल डिकम्पोजिशन अगर आप करें, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो हम लोगों ने कर ली। Okay, now we are discussing very important topic, that is the binary compounds of hydrogen. उसमें हम लोग थोड़े से कोशिश करके एक हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, टाइम है हमारे पास। इस यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? अगेन आई एम आस्किंग, इफ यू पीपल हैव, यू कैन आस्क। नो सर। नो? ओके। एक मिनट बचे। Okay, now we are discussing the second last topic of this chapter, that is the binary compounds of the hydrogen, or in other words we can say that they are also called as the hydrides.
इनको हाइड्राइड्स भी कहते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स, बाय मींस टू, ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट हैं, राइट। एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ द हाइड्रोजन मींस एक हाइड्रोजन है, दूसरा किसी के साथ भी रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाता है। दिस इज द रीजन दैट इट इज कॉल्ड द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, और अनदर वे दैट इज कॉल्ड द हाइड्राइड्स। ये डेफिनेशन है इसकी, देखें अलीजे ये रीड करें डेफिनेशन बच्चे। The compounds obtained by the reaction of hydrogen with any other element are called binary compounds of hydrogen, also known as hydrides. ऑल्सो नोन एज हाइड्राइड्स। अब जो है फरियाल, आप ये मुझे बताएंगी कि एक है, अभी हमने पढ़ा हाइड्राइड्स, ठीक है, दूसरा मैंने पहले भी पढ़ाया था दैट इज हेलाइट्स। अब इन दोनों में डिफरेंस आप जल्दी से बता दें, शाबाश फरियाल। Sir, यस मैं बताऊं? फरियाल, एक मिनट ना, नहीं फरियाल बताएंगी, आपसे सवाल पूछ लिया, फरियाल जल्दी से बताएं बच्चे डिफरेंस बिटवीन हेलाइट्स एंड हाइड्राइड्स। बहुत इजी है, दोनों सेम है या डिफरेंट है? फरियाल जल्दी से बता दें। हेलो फरियाल, आप ये बताएं आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चे, तो आगे हम कंटिन्यू करें। फरियाल, सर उसका नेट इशू होगा। नेट इशू जब क्वेश्चन ही पूछता है ना टीचर, जब ही होता है। नहीं सर, वो वैसे जवाब देती है। नहीं तो अभी देखे ना, इतना टाइम हुआ है बच्चे, तो अब ऑनलाइन सर क्लासेस हैं। बाइनरी कंपाउंड, यस, जी, बाइनरी कंपाउंड है वो ओके हेलोजेंस के साथ कंबाइन होता है, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके बनाता है आई गेस। ओके। हाइड्राइड्स जो है कंपाउंड बनता है हाइड्रोजन और कोई भी और एलिमेंट के साथ। हेलाइड्स बनते हैं कंपाउंड्स हेलोजेंस, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का किसी भी और एलिमेंट्स के साथ। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है, ओके गुड। हाइड्राइड और हेलाइड क्लियर कर लें आप लोग। नाउ दीज आर दी 6 different we can say that halides sorry hydrides of the formed by the hydrogen। अब ये फरियाल पढ़ें नंबर 1, 3 तक आप पढ़ें, 3 तक अलीजे पढ़ेंगी। Ionic hydrides, ओके covalent hydrides, polymeric hydrides. ओके, these are the 3 hydrides, remaining 3 अलीजे, fourth one। Metallic hydrides, borderline hydrides, complex hydrides. Complex hydride, right? These are the 6 different hydrides formed by the hydrogen, and it is very important question। लॉन्ग क्वेश्चन के में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बहुत सारे इसमें से आते हैं, तो इसको देखें। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ionic hydride। now look at here, ionic hydrides are also called as salt like or saline hydride। ये 3 डिफरेंट नाम हैं, ionic hydride or also called as salt like, or another word they are also called as saline, saline hydrides, because they have the same similar properties like the salt। ओके, नाउ लुक एट दिस अलीजे, जैसे बच्चे मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसकी मैं आपको आउटलाइंस बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि आउटलाइंस आयोनिक हाइड्राइड्स जो हैं, तो उसमें आपने कौन सी आउटलाइंस बनानी है। पहले फॉर्मेशन बतानी है कि कौन सा पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स मिल के हाइड्रोजन के साथ बनाता है। बॉन्डिंग बतानी है, वेदर इट इज आयोनिक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट कौन सी है। फिर आपने जनरल फार्मूला बताना है इसका, अगर आपने एग्जांपल दें तो फिर लिखेंगे कैसे केमिकल फार्मूला का। और उसके बाद फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बतानी है कि किस तरह से ये प्रिपरेशन होना है, एक दो एग्जांपल देंगे। और लास्ट में आपने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, और लास्ट में यूजेस भी बतानी है, ठीक है। यूजेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी
यूजेस ऑल्सो आपने बताना है आयोनिक हाइड्राइड्स का, और लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा इसका स्ट्रक्चर। लेकिन इसको थोड़ा सा अली से और ऑर्गेनाइज करेंगे इस तरह से कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक साथ करके एंड में हम लोग यूजेस लिख देंगे। ये स्लाइड को मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, तो यूजेस आपका एंड में होगा और इस तरह से। तो अब इसका एक मिनट ना, इसकी मैं अभी आपको थोड़ी सी आउटलाइंस इसकी एक बता दूं कि आपने किस तरह से इनकी आउटलाइंस बनानी है, याद करना है। अभी अली से आप भी मुझे बता दें थोड़ा सा कि टॉपिक है हमारा आयोनिक हाइड्राइड्स। ठीक है, तो ये आपका समझिए नंबर 1 है। ओके, इसकी आउटलाइंस कैसे बनाओगे आप लोग, जो मैंने अभी आपको बताई थी। पहले डेफिनेशन के साथ। एक मिनट, आयोनिक हाइड्राइड्स की आपने बनाना है चलें, आयोनिक हाइड्राइड हो गया। अब आपने बचे इसकी बतानी है आउटलाइंस। आउटलाइंस में पहले आपने बताना है कि फॉर्मेशन इसकी क्या है, कि कैसे बन रहा है। ठीक है, नंबर 1 इज फॉर्मेशन। उसके बाद दूसरा आपने क्या बताना है, बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग के बाद आपने बताना है, देखें जैसे ये हम लोग उस पर आगे बॉन्डिंग, फिर हाँ आपने बनाना है जनरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जनरल फार्मूला या आप एक इसको कह सकते हैं कि जनरल फार्मूला, और आप इसको कह सकते हैं कि दे आर आल्सो एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स भी हैं हमारी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जनरल फार्मूला स्लैश देके आपने जनरल फार्मूला आपने एग्जांपल्स का ही बताना है। ठीक है, अच्छा क्या एग्जांपल्स इसमें, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल, केमिकल एंड यूजेस। तो फार्मूला हो गया, उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बाद फिजिकल, लास्ट में हमारा ये है, एंड दिस इज द आउटलाइन ऑफ द यू कैन से दैट सर क्वेश्चन। फिजिकल और केमिकल का साथ मिला कर लिखते हैं नहीं, तो ज़्यादा सही अलग नहीं अलग अलग कर देते हैं बच्चे, क्योंकि वो हम लोग लिखेंगे भी अलग ही ना, लिखेंगे भी अलग ही, तो वो ये कैसे होगा। अब दिस इज दी वी कैन से दैट कंप्लीट पिक्चर ऑफ दी वन टॉपिक। ये अगर आप लोगों को आउटलाइंस अगर आ गई आप लोगों को, तो फिर आप आराम से लिख सकते हो उसको अच्छे तरीके से। ठीक है जी, अप टू दिस वन एनी डिफिकल्टी इफ यू हैव यू कैन आस्क। कल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आयोनिक हाइड्राइड्स और दूसरे टाइप्स। ठीक है जी, एनी डिफिकल्टी इफ यू हैव यू कैन आस्क, क्योंकि टाइम हो गया है, तो आप लोग नो दूसरी सर क्लास। ओके, नो चलें, सर, थैंक यू, लव अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे अल्लाह हाफिज़।